Greetings. I hope you all are doing well and are benefiting from the sessions that are being conducted. जैसा कि आपसे वादा करा था, as promised, Delhi Judicial Services का जो मेंस एग्जामिनेशन है अपकमिंग, बिकॉज द रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, हमने कुछ ट्रिकी एरियाज के बारे में आपके साथ चर्चा करी है और अब हम जो मेन स्ट्रीम एरियाज हैं उनकी प्रिपरेशन के बारे में आपके साथ चर्चा करें. See, let me tell you, this is a competitive examination. अगर मैं आपको बताऊं कि भाई आप सीआरपीसी इतने दिन पढ़िए, सीपीसी इतने दिन पढ़िए, आईपीसी इतने दिन पढ़िए, एविडेंस इतने दिन पढ़िए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मेंस के लिए स्पेसिफिकली ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हमारा इतने दिन में आपने कवर करवा दिया सिलेबस, कि भाई आपने 5 दिन सीपीसी को दिया. अरे 5 दिन में सीपीसी, 6 दिन में सीआरपीसी, अरे 6 दिन में सीआरपीसी हो गया, अरे वाह. ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है. मैं मेंस की बात करूं, प्री में ये चीज कारगर रहती है, बिल्कुल रहती है, बिकॉज एरिया जो है प्री का वो इन डेप्थ नहीं है. दो प्रोविजंस बहुत सारे पर इन डेप्थ एरिया नहीं. मेंस में पॉकेट्स हैं, एरिया ऑफ स्टडी कम है पर इन डेप्थ स्टडी करनी जरूरी है. तो यहां पे अगर मैं आपको कहूं कि आप इतने इतने दिन में सब कुछ कवर कर लीजिए, इट विल नॉट एट ऑल बी बेनिफिशियल एंड आई विल नॉट डू दैट विद आवर स्टूडेंट्स. रादर देखिए, सीपीसी अगर मैं आपको बोलूं 5 दिन में कवर कीजिए, हो सकता है किसी का सीपीसी इतना ज्यादा स्ट्रांग हो, 6 महीने से उन्होंने सीपीसी पे इतना फोकस करा हो, that civil procedure code is a cakewalk for them. They have been reading the latest judgments, solving questions, practicing means answer writing along with their preparation. So if that has been the case, you need probably 2.5 days for CPC revision, that's all. And probably somebody's CRPC is so weak because of the technicalities of procedure, because of the number of provisions, that it is becoming a Herculean task. बहुत मुश्किल हो रही है सीआरपीसी को टैकल करने में. They might take CRPC and stretch it to at least 7 days of preparation for CRPC alone. This is what I am suggesting here. Now you cannot bifurcate and divide the subjects. I am not here for that at all. Rather, I am trying to focus your attention on the most relevant areas of the subject, from where most questions are expected, most questions have been seen to have appeared in the question paper time and again, and also those areas where you need to pay more attention. More attention has to be paid. Let us start. First of all, I will start with the Code of Civil Procedure. In fact, let me at least bifurcate the subjects into two. You have CPC, you have CRPC, you have IPC, you have evidence, the civil and criminal side both. Then you have, I am not talking of those areas, let me tell you, which I have already covered in the section where some of the track areas were there, like TPA I have covered there, like Copyright and Trademark Act, how to approach it, I have covered it there, like arbitration and conciliation, etc. Some of those areas I have already covered in the other session. I am not going to take up those areas at all. You have Indian Contract Act, you have SRA, you have the Law of Limitation, that is the Limitation Act. Then you have Hindu law and Mohammedan law. I am going to take it as one, which is family law. You also have the Registration Act. Apart from the Registration Act, you have laws like Domestic Violence Act, Protection of Women from Domestic Violence Act, Prevention of Sexual Harassment at Workplaces, or you have the JJ Act,
You have Negotiable Instruments Act. I think I have covered all these areas. TOTS, SOGA and partnership. Now these are the areas which you need to focus on, which have been left apart from those off track areas which I've already covered. अब अगर आप इन सब एरियाज में से देखेंगे, इन सब लेजिस्लेशंस में से देखेंगे, को दिखेगा सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस. हो सकता है कुछ लोगों के लिए हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ एक ट्रिकी पार्ट बन जाए. हो सकता है कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप एक्ट एक ट्रिकी एक्ट बन जाए. बिल्कुल बन सकता है, बिकॉज पार्टनरशिप, यू सी द एरियाज ऑफ क्वेश्चन इन दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, इट इज चैलेंजिंग. सबसे पहले हम काम करते हैं, हम इन सारे एरियाज को समझने की कोशिश करते हैं. एंड वील स्टार्ट विद द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. अब अगर आप सीपीसी की बात करेंगे, सीपीसी के अंदर अगर आप देखेंगे, ऑफ कोर्स सेक्शन 10(11) which is res sub judice, res judicata, that is one of the most important areas. You have section 9, यहां से भी सवाल डेफिनेटली बन सकते हैं. इसके अलावा अगर आप सीपीसी के प्रोविजंस देखेंगे, इनहेरेंट पावर्स, यस, I will not limit it to the provision itself, but inherent powers under CPC as a whole. यहां से आपको सवाल डेफिनेटली देखने को मिलेंगे सेक्शन 151 से. देन अगर आप सीपीसी में देखते हैं, आपको अपील के जो एरियाज हैं वहां से डेफिनेटली कुछ ना कुछ सेक्शंस देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सॉरी. मोरओवर इन सीपीसी यू हैव Order 2 Rule 2, Order 6 Rule 17, Order 7 Rule 11, non-joinder, misjoinder of necessary and proper parties. यहां से सवाल देखने को मिलेंगे. Then you can have suits जो by and against minor है, यहां से सवाल देखने को मिलेंगे. डेथ मैरिज इंसॉल्वेंसी, यहां से देखने को मिलेंगे. टेम्पररी इंजंक्शन से आपको कोई सवाल मिल सकता है. टेम्पररी इंजंक्शन के अलावा कमीशन से कभी कभी देखा गया है, बट वो डेफिनेटली जो वो क्वेश्चन आता है ना, जिसमें एक क्वेश्चन होता है, देन देयर आर सेवरल पार्ट्स टू दैट क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन अ वेरी बिग सेट ऑफ फैक्ट्स. वहां पर कोई ना कोई आपको दिखेगा कि कमीशन से रिलेटेड प्रोविजन जो है उससे कोई क्वेश्चन रिलेटेड पूछा गया है. एंड देन ऑफ कोर्स अपील तो है ही. इवन इन ऑर्डर्स देयर इज अपील. रेफरेंस रिव्यू रिवीजन, यू सी इट्स इन डिक्शनरी ऑर्डर. रेफरेंस रिव्यू रिवीजन, वहां से आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं. ऑर्डर 9 अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, वहां से आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं. हो सकता है आ जाए. एक बारी मैंने देखा था दैट सिविल प्रोसीजर कोड में ट्रायल से सवाल पूछा गया था, बट दैट इज वेरी रेयर. दैट इज वेरी वेरी रेयर. आई थिंक सीपीसी में ये एरियाज दे आर मोर देन इनफ. यू सी व्हेन यू हैव 10-15 एरियाज ऑफ दिस सॉर्ट, आप देखिए पूरा सब्जेक्ट हैज बीन नैरोड डाउन टू व्हाट, 10 to 15 in fact questions. Now when you have a question regarding order 2 rule 2, suit to include the whole claim, when you are talking about order 2 rule 2, you tell me order 2 rule 2 से आप कितने सवाल बना सकते हैं. You can change the set of facts, understand the approach, you can change the set of facts. There can be hundreds of different sets of facts related to order 2 rule 2, but will the principle change? The principle of order 2 rule 2 and its application remains the same. Of course, according to the set of facts, you will have to apply the necessary provision. But will the underlying basic concept change? No, that is one question.
Order 2 Rule 2 is a one question, it's one single question. Order 6 Rule 17 Amendment of Pleadings, it's one single question. The basic underlying fundamental concept remains the same. It remains exactly the same. So CPC, I think these are the areas where you should pay a lot of attention. Where you should pay a lot of attention. Then comes CRPC. अब अगर आप CRPC की बात करें, of course chapter 12 which is the chapter of investigation, वहां पर भी 154, 164, 162 subsection 1, 167 and 173 subsection 8, ये सबसे ज्यादा important areas है when it comes to CRPC. Then you can have some questions from chapter 5 which is of arrest. यहाँ पे latest cases जो हैं उसका रोल बहुत रहेगा. You can have some questions from chapter 33 which is bail. कुछ हो सकता है मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रोविजंस जो है वहां से सवाल देखने को मिले आपको. और अपार्ट फ्रॉम दिस इन सीआरपीसी ट्रायल से कभी कभार सवाल आ गया तो सेशंस ट्रायल से पूछ सकते हैं. हो सकता है आपसे कोई सवाल आ जाए, सेशंस ट्रायल से हो सकता है कोई सवाल आए. अदरवाइज आई डोंट थिंक सो दैट यू विल हैव एनी trouble in CRPC other than these areas. I don't think so. हो सकता है आपसे कभी कभार सवाल आ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. इनहेरेंट पावर से सवाल पूछ लें, that is also very rare area, but it's a small area, we can cover it. Not a big issue at all. I think CRPC gets sufficiently covered in these. अब आप इन टॉपिक्स में भी देखेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा जो सवाल मिलेंगे वो 10 से 15 सवाल मिलेंगे. आप ढूंढ लीजिए. यू ट्राई टू फाइंड क्वेश्चंस फ्रॉम दीज एरियाज, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड मोर देन 10 to 15 अल्टीमेट क्वेश्चंस. अब एक ही टॉपिक से हजारों क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल पार्ट हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन यू मेक? 10, 15, maximum 20, maximum 20, not more than that, not more than that. IPC से let's move on to IPC now. If we talk about IPC, see 299 and 300 ये तो फेवरेट एरिया है ही. यहां से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्सेप्शंस से, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से. 299 and 300 and grievous hurt related to section 300 CRPC, ये सवाल भी आ सकता है. Because I was recently going through a case. What did I say? Section 299 and 300, that is culpable homicide not amounting to murder and culpable homicide amounting to murder. इस एरिया को फैक्ट्स में इंकॉर्पोरेट करा, साथ में ग्रीवियस हर्ट को इंकॉर्पोरेट करा, एंड साथ में सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी विच इज डबल जेपर्डी, उसको इंक्लूड करा यहां पर. एंड इन सब प्रोविजंस को एक लाइन में इंक्लूड करके सेट ऑफ फैक्ट्स दिए गए आपको, उसमें सीआरपीसी का भी सवाल आ जाएगा, आईपीसी का भी सवाल आ जाएगा. ये देखा गया है और आपको ऐसी ही इलस्ट्रेशन सेक्शन 300 में एग्जैक्टली दिख भी जाएगी. देखिएगा सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी में ऐसी इलस्ट्रेशन आपको दिख जाएगी. तो आईपीसी में 299 एंड 300 ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट अगर मैं आपको कहूं ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी एंड प्रॉपर्टी, आप मेन प्रोविजन सारे करके जाएंगे. आपसे कितनी बारी पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड अबडक्शन. आई हैव सीन इनफैक्ट क्वेश्चंस जहां पे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड किडनैपिंग फॉर रैंसम. 364 कैपिटल ए इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. ये सवाल पूछने को आ जाते हैं कभी कभार. इट इज अबेटमेंट
वहां से सवाल देखने को मिलते हैं, बहुत बारी देखने को मिलते हैं। कॉन्स्पिरेसी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू, इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी कई बारी देखने को मिलते हैं हम। देन रेप, स्पेशली रेप ड्यूरिंग सेपरेशन, इट्स अ वेरी वेरी रेलिवेंट टॉपिक दीज डेज, वहां से आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन, if you see that you will find that common intention common object, most definitely common intention versus common object, यहां से तो सवाल आपको most definitely देखने को मिलता ही मिलता है। apart from this in IPC if you see there can be a question from defamation, यस, डिफेमेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस आपको, मैं आपको बता रहा हूं, इफ यू सी यू विल फाइंड सच क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। कॉर्पस डिलिक्टी, बॉडी ही नहीं मिलेगी तो मर्डर कैसे प्रूव करोगे, क्वेश्चंस लाइक दिस। एंड आई विल टेल यू जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स व्हाट इज द नेचर ऑफ क्वेश्चन इन दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज। इंडियन एविडेंस एक्ट, सी एटलीस्ट फ्रॉम सेक्शन 5 till 55 आप पूरा करके जाएंगे, प्राइमरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस पूरा करके जाएंगे। कभी कभार होता है कि आपको 145 157 यहां से सवाल पूछ लिए जाए, कॉन्ट्रडिक्शन, क्रॉस एग्जामिनेशन, कोरॉबरेशन, वेरी रेयर। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन, परेड, इज टेस्ट टीआईपी और राइट, कैन अक्यूज्ड as a matter of right demand TIP, there is a case also, Prakash versus State of Karnataka. Then conspiracy, Mehboob Shah versus King Emperor, very very famous case related to conspiracy in section 10. No, sorry, King Akbar versus King Emperor versus Mirza Akbar. किंग एम्परर वर्सेस मिर्जा अकबर, महबूब शाह तो आईपीसी में है, किंग एम्परर वर्सेस मिर्जा अकबर, दैट्स अ वेरी वेरी सेलिब्रेटेड केस इन सेक्शन 10 conspiracy. Then you have areas like in evidence you have areas like section 91, वहां पे भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं कई बारी। 91 is also a very very relevant area. Yes, 91 is a very relevant area. Dying declaration, needless to say, आप देखेंगे 6, 8, 9, 10 alibi. Then if you see confessions, then if you see dying declaration, expert opinion, is it binding or not, what is the evidentiary value of an expert opinion, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली इंडियन एविडेंस एक्ट में देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट इन आईपीसी यू सी जनरल एक्सेप्शंस, I suggest students to generally cover general exceptions along with body and property. I do that simultaneously, but general exceptions, yes, this is something that has to be done. Anyway, all these areas in Indian Evidence Act, और मैं आपको बताऊं नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा रहते हैं दिल्ली जुडिशरी में, they will connect CRPC, IPC and evidence all together. Definitely उस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे उसमें एक मर्डर भी होगा, उसमें डबल जेपडी की भी बात हो सकती है, उसमें अपील की भी बात हो सकती है, उसी क्वेश्चन में FIR की रेलेवेंस की भी बात हो सकती है, उसी क्वेश्चन में रिमांड का भी क्वेश्चन आ सकता है, उसी क्वेश्चन में एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन गिवन टू अ मैजिस्ट्रेट आ सकता है, और उसी क्वेश्चन में कन्फेशन, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर आ सकता है। साथ ही साथ डाइंग डिक्लेरेशन का भी एक पार्ट इन्वॉल्व होगा उसके अंदर। दिस इज द नेचर ऑफ क्वेश्चन। 50 मार्क्स, 70 मार्क्स, 60 मार्कर, इस तरीके के क्वेश्चन दिल्ली जुडिशरी के मेंस एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं। दे डू नॉट आस्क यू क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इन आइसोलेशन एज सच। होते हैं, एग्जामिनेशन का पेपर इस तरीके से सेट होता है कि जो बहुत ज्यादा नहीं भी पढ़ के आया है वो भी एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ टैकल करके अपने आप को सर्वाइव करवा सकता है, बट जनरली आपको ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे।
देन नेक्स्ट यू हैव हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ, दैट इज फैमिली लॉ। अब आप जब फैमिली लॉ की बात करते हैं, अब इफ यू टॉक अबाउट मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ में आपको पता है डावर, इद्दत, तलाक, निकाह। सक्सेशन पे आप ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ अल और रद्द होता है, रिमेंबर दैट, बट सक्सेशन पे आप ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। क्यों? एक सवाल आएगा नहीं आएगा, आप मुस्लिम लॉ का सक्सेशन पढ़ने में ही पूरा टाइम अपना निकाल देंगे, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा ट्रबल होने की जरूरत नहीं है, तो यू फोकस अ लिटिल ऑन सक्सेशन। देन लैंडमार्क जजमेंट्स, ऑफ कोर्स landmark judgments that I will deal separately also in this session itself. Then in Muslim personal law, the protection of women on divorce, protection of the rights of divorced Muslim women, the legislation that you have to deal with very carefully, that is the legislation area in Muslim personal law। और कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिंदू लॉ, सीधे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर लिमिटेड, आप इतना ही कवर अगर कर लोगे, योर मैक्सिमम क्वेश्चंस आर गोइंग टू गेट कवर्ड इन डावर, इद्दत, तलाक एंड निकाह, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट कवर्ड। अगर आप हिंदू लॉ की बात करेंगे, हिंदू लॉ में क्लास 1 क्लास 2 एयर्स का जो डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी होता है वो ढंग से करके जाइएगा। नेचर ऑफ हिंदू मैरिज, नेचर ऑफ मैरिज करके जाइएगा। उसके बाद डिवोर्स के ग्राउंड्स, देयर हैव बीन lot of recent judgments specifically on cruelty as a ground for divorce, then irretrievable breakdown of marriage, how the Supreme Court has intervened regarding this particular area, that you have to pay attention towards that. Then if you see adoption, maintenance, these are all, किसका अडॉप्शन कर सकते हो, कब कर सकते हो, कौन कर सकता है अडॉप्ट, वेरी सिंपल, मतलब कोई डिफिकल्टी नहीं है, बट दीज आर ऑल दोज क्वेश्चंस व्हिच यू शुड ग्रैब, कि आप जल्द से जल्द इन क्वेश्चंस को देखते एग्जामिनेशन में, यू आर एबल टू सिंपली राइट डाउन द आंसर, एंड दीज आर लॉटरी क्वेश्चंस, नो डिफिकल्टी हियर। अडॉप्शन आ जाता है, मेंटेनेंस आ जाता है, गार्डियनशिप वेरी सिंपल अगेन, और जहां पे आप सक्सेशन की बात करेंगे वहां पे कर्ता की पावर्स की बात करेंगे, एंड एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय को-पार्टनर्स, एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय को-पार्टनर्स, these are the areas specifically that you should cover, specifically that you should cover, and pay a lot of attention to these areas, and pay a lot of attention to these particular areas. Now let us go to partnership. Indian Partnership Act. You see section 19, section 30. Plus, if you see dissolution of a partnership firm by court, by act of partners, by operation of law, and then nature of a partnership, जो कॉक्स वर्सेस हिकमैन का बहुत रेलिवेंट केस है, जहां पे इनफैक्ट हाउ डू यू डिटरमाइन द नेचर, हाउ डू यू डिटरमाइन इट, हाउ डू यू फाइंड आउट इट इज अ पार्टनरशिप और नॉट, is it simply sharing of profits, or is it intention of the parties, or is it based on contract? That you have to see, that you have to see. Implied authority, section 19, माइनर से रिलेटेड क्वेश्चंस पार्टनरशिप में ये देखे जाते हैं, और यहां पे आपको क्वेश्चन सिंपल नहीं मिलेंगे। पार्टनरशिप एक्ट में यू विल फाइंड factual questions based on very complicated factual scenarios, और ये questions आपको फंसाएंगे अगर आपने सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं करी है तो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन
कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे अगर आप देखेंगे आपको जो जनरल प्रिंसिपल्स है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सबसे ज्यादा सवाल आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। फ्रस्ट्रेशन, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू कैन नॉट प्लीड फ्रस्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरिया। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, आपको हो सकता है कोई फैक्चुअल सवाल आ जाए रिलेटेड टू कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, इट इज अ पॉसिबिलिटी, बट जनरली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आई हैव सीन दे रिलेट इट विद एसआरए एंड लिमिटेशन, और तब सवाल बनाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जनरली, एक्सेप्ट अगर आप फ्रस्ट्रेशन का एक आइसोलेटेड टॉपिक देखें, उसके अलावा बाकी जो भी आपको क्वेश्चंस देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, दे आर रिलेटेड टू एसआरए एंड दे आर रिलेटेड टू लिमिटेशन एट द सेम टाइम। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आप क्वेश्चंस देखते हैं, यू कैन फाइंड सम क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस, you can find some questions like something related to blue pencil rule, anticipatory breach of contract. Yes, you can find some questions related to anticipatory breach of contract. In Indian Contract Act, you can find questions related to section 25 specifically. यहां से सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। I think this covers Indian Contract Act. जहां तक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात है, आई वुड सजेस्ट एक तो एजेंसी और एक बेलमेंट। बेलमेंट में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली दैट विल बी सफिशिएंट। एजेंसी, एजेंसी में एजेंट के पास कब इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ हिज इम्प्लाइड अथॉरिटी टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, एंड व्हेन डज एजेंसी टर्मिनेट। दीज आर ओनली 2-3 एरियाज जहां से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेस्ट आई थिंक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गेट्स sufficiently covered in this area। बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक एसआरए और लिमिटेशन की बात है, आई विल डिस्कस इट राइट हियर बिकॉज इट इज रेलिवेंट टू डिस्कस इट अलॉन्ग विद कॉन्ट्रैक्ट। एसआरए में अगर आप देखेंगे जो रिसेंट अमेंडमेंट्स वाले एरिया है वो अभी तक बहुत रेलिवेंट है इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वहां पे आप जरूर देखेंगे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपको साथ ही क्वेश्चन सेक्शन 12-13 से देखने को मिल सकते हैं, आपको क्वेश्चन इंजंक्शंस, आपको क्वेश्चंस डेक्लरेटरी डिक्रीज से देखने को मिल सकते हैं। साथ में क्वेश्चन आपको सेक्शन 6, सेक्शन 8, यहां से जनरली फैक्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं। सेक्शन 6 related to immovable property dispossession, and then section 8 related to movable property in the same line. जनरली आपको यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एसआरए। अगर आप लिमिटेशन एक्ट की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द लिमिटेशन एक्ट, हियर इन लिमिटेशन एक्ट यू विल सी क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू सेक्शन 3, section 14, section 25. You can see some questions from section 13 also sometimes, section 6, 7, 8, 9. This is one set of provisions in the limitation act. यहां से आपको सवाल देखने को मिल जाते हैं लिमिटेशन। और लिमिटेशन, लेट मी टेल यू, इज अ वेरी वेरी conceptual concept. Or section 5, yes of course, needless to say, section 5, that is very important. Section 5, condonation of delay. This is as far as we go related to Indian Contract Act, SRA and limitation. Let's go to SOGA, Sale of Goods Act. सेल ऑफ गुड्स एक्ट की अगर आप बात करें, कंडीशंस, वारंटीज एंड द रेमेडीज विच आर अवेलेबल व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स।
क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती हैं, रिटर्न ऑफ गुड्स and supply of goods, return of payment, etc. If you see the Sale of Goods Act of 1930, you will find this sufficiently covered. टॉट्स की अगर आप बात करें, अब देखिए टॉट्स में कुछ छोड़ने वाला नहीं है, आप टॉट्स को पूरी तरीके से करके जाइए, बिकॉज लेट मी टेल यू टॉट्स इज एन एंटायरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट. हो सकता है कोई केस के फैक्ट्स आपको बनाकर दे दे एंड वो टॉट्स से रिलेट कर दे, बट वहां पे भी आप बहुत इजीली निकल जाएंगे. नेग्लिजेंस हो सकती है, मेडिकल नेग्लिजेंस हो सकती है. You can have areas like nuisance in torts. You can have areas like is it the law of tort or the law of torts? Pigeonhole theory आपके सामने आ सकती है क्वेश्चंस में. टॉर्ट्स में आपको जनरल डिफेंसेस जो होते हैं वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं. एक्ट ऑफ गॉड से बहुत बारी सवाल देखने को आया है. वॉलंटरी नॉन विथ इंजूरी, अगेन अ वेरी वेरी यू नो अ वेरी डूएबल एरिया. मतलब यहाँ पे आपको ज्यादा डिफिकल्टी टॉर्ट्स वगैरह जैसे एरियाज में आनी नहीं चाहिए. Then if we talk about registration, अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में आपको सिर्फ फोकस करना है सेक्शन 17, सेक्शन 42, थोड़ा बहुत सेक्शन 18 देख लीजिएगा. ये जो एरियाज हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट से आपको इंडिपेंडेंट सवाल नहीं मिलता, ये आपको अलाइड मिलता है, लाइक टीपीए, ये आपको अलाइड मिलता है विद लिमिटेशन एक्ट, ये आपको अलाइड मिलता है विद सीपीसी. जनरली रजिस्ट्रेशन एक्ट से इंडिपेंडेंट सवाल आपको एक खड़ा हुआ नहीं मिलेगा कि हाँ जी ये रजिस्ट्रेशन एक्ट से, प्योरली रजिस्ट्रेशन एक्ट से सवाल आया. ये टीपीए, लिमिटेशन या कहीं ना कहीं सीपीसी से रिलेटेड होगा. आपको कोई इंडिपेंडेंट सवाल जनरली देखने को नहीं मिलेगा इन रजिस्ट्रेशन. जहां तक हम बात करें अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वहां पे आप रीसेंट केसेस देख लीजिएगा और उसके साथ रेजिडेंस ऑर्डर, मॉनिटरी जो कॉम्पनसेशन के लिए है हमारे पास, इससे रिलेटेड एरियाज आपको देखने मिल सकते हैं. कस्टडी प्रोसीजर क्या फॉलो करना है वहां पे आप जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे अप्रोच ही पूछेंगे आपकी कि अगर एज अ मैजिस्ट्रेट इफ यू आर सिटिंग ऑन द बेंच, व्हाट विल बी योर अप्रोच when a case like this presents itself in front of you. अगर आप prevention of women from sexual harassment पूछें, अगेन आप recent cases देख लीजिएगा, साथ साथ प्रोसीजर देख लीजिएगा कि सेक्सुअल प्रिवेंशन ऑफ वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए व्हाट इज द प्रोसीजर. जो 2013 का एक्ट है, व्हाट इज द प्रोसीजर. प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस एक्ट. देन यू सी जेजे, यहां पे भी प्योरली आप प्रोसीजरल एस्पेक्ट पे ध्यान देंगे. जो प्रोसीजरल एरियाज हैं, जो पनिशिंग एरियाज हैं, उन पे ध्यान देंगे आप. देन एनआईए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. ऑफ कोर्स 138 से 143 का जो एरिया है, इस पे आपका ज्यादा फोकस रहना चाहिए. I think this sufficiently covers all these areas, and now I will give you a small suggestion. You follow it or not, that is completely up to you. What I am trying to now tell you is how to group these subjects together. कितने दिन देना चाहते हैं आप उन subjects को, that is completely up to you. But I would say where you are doing CPC, I would suggest where you are doing CPC, along with CPC, you should have limitation going on at the same time. मतलब अगर आप एक दिन के अंदर, let us say half of the day you're giving to CPC, you should give some part of it to limitation, and along with limitation, you should give some part to it to SOGA. Where you are doing CRPC, I would suggest some part of it you give to family law in that particular day, and some part of that particular day you give to torts. Where you are doing IPC, I would suggest along with IPC, Protection of Women from Domestic Violence Act,
then Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplaces Act, then JJ Act, then NIA. Because these are all very, very, very easy areas to cover. जहां पे आप इंडियन एविडेंस एक्ट कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि वहां पे आप SRA दीजिए. SRA के साथ साथ अगर आप दे सकते हैं थोड़ा टाइम, रजिस्ट्रेशन को दीजिए. Then where you are doing Indian Contract Act, I would suggest when you start doing contract, you do SOGA and partnership. हो सकता है आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं अटपटा लगे कि मैंने SRA एविडेंस के साथ बोला और SOGA और पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के साथ बोला. See, that makes more sense. I go by logic, not by common understanding. The thing is, SOGA and partnership are also types of contract. Where you do it with Contract Act, it becomes a little easy for you. CPC के साथ जब आप SOGA तो already covered है. Okay, so you can do partnership along with the Indian contractor. So where you do these areas, इस तरीके से अगर आप अपना डे प्लान करके चलते हो, so आपके पास फॉर एग्जांपल आप IPC पढ़ रहे हैं, these are all areas which are lighter. If you talk about CPC, limitation makes logical sense, SOGA is little light. CRPC, family law is somewhere or the other easy, and torts दोनों easy हो जाते हैं. CRPC is quite heavy in its own sense. Evidence Act अगर आप देखेंगे, evidence के साथ SRA and registration इसलिए दिया, evidence is interesting, SRA registration कहीं ना कहीं थोड़े से dry हो जाते हैं for people, so it becomes a little easy for you like this. And my suggestion would be practice at least 5 mains questions. और जो वो tricky areas थे जो I've already covered, वो भी आप कहीं ना कहीं इन areas के साथ match कर सकते हैं. Practice at least 5 mains questions in a day. ये आप जरूर करिए, बिकॉज आपने लैंग्वेज भी कवर करना है. दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन. मेरे को कभी कभार लगता है दैट लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज दैट डिसाइड्स योर रैंक एंड योर एंट्री इनटू द मेरिट लिस्ट. यस, एसेज प्रैक्टिस कीजिए and I think you will be comfortable when covering these areas. Hope the session was useful for all of you, and I'll meet you once again with such another wonderful session where I am trying to help you in the upcoming endeavors in your preparation. Thank you so much.